Welcome back. Next, hot question 77. Hot question 77. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. Check it out first. Das Limited issued a prospectus for inviting application of 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium rupees 4 per shares payable installment. Application 3 plus application with 3 including premium 1. Now this is a separate question. थोड़ा सा attention दे के करोगे, it will be clear because on all installments carried the premium. Application is a 3 including premium 1, that means 2 plus 1. Allotment is 2, that means including premium 1, 1 plus 1. First call is 4, including premium 1, that means 3 plus 1. And final call is 5, including premium 1, that means 4 plus 1. So 4 plus 3, 7, 7 plus 1, 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 1, 1, 1 is equal to 4. That is a 10 plus 4 is my face value. Clear? Now, face value is 10, premium is 4. How much share we have issued? 10,000. Received 15,000. That means excess is 5,000 shares. There is a no point of refund. No point of refunds. It means clear that the excess money on excess shares transfer to the next call. That means allotment. Clear? Now, what is the prorata? Oversubscription is there. The prorata without refund. 15 is to 10. It's come to 3 is to 2. Now there is a two party. One is the Nikhil and other is Arjun. Go to the PDF file or questions. Applications were received for 15,000 equity shares and allotment was made on pro rata basis. Clearly defined. Now, point 1, Nikhil who applied for 60 equity share. Applied for, ध्यान रखना. Applied for तो allotted निकालने पड़ेंगे. What is the pro rata? 3 applied, 2 allotted. 3 is asking rate, asking shares and 2 is allotted shares. मांगेगा ज्यादा मिलेगा कम. इस वर्ड को दिमाग में रखोगे pro rata में. Applied for 60 equity shares, failed to pay the allotment money and on subsequent failure of first call, his equity shares were forfeited. तो निखिल एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे. प्रोराटा है, नॉट पेड निकालने पड़ेंगे. मैंने बार बार बोला, इफ एनीवन फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी यू हैव टू कैलकुलेट द नॉट पेड अमाउंट. तो मैंने नॉट पेड अमाउंट यहाँ पे निकाला. केयरफुली इसको वॉच करो. अप्लाइड इज टू अलॉटेड, अप्लाइड इज 3, allotted is 2. Nikhil applied for 60 shares, so 3 applied, 2 allotted, and that became 40 is allotted. 60 मांगा था, 40 मिला. Always मांगेगा ज्यादा, मिलेगा कम. Now 60 मांगा था, 60 into 2 plus 1 जमा किया था, 120 plus 60, 180 उन्होंने जमा कर दिया था, 180 rupees. Out of that हमने कितना रखेंगे? हमने 40 शेयर अलॉटमेंट किया था. 40 into 2 80 and 40 into 1 40. That amount, that means 120 will be deducted from 180. That means excess is 60. 60 के बाइफिकेशन क्या है? 40 rupees कैपिटल में पड़ा हुआ है, 20 rupees प्रीमियम में पड़ा हुआ है. Now come to the point. Allotment ड्यू हो रहा है 440 shares into what is allotment? Installment 1 plus 1. That means 40 into 1 and 40 into 1. Total is due 80 rupees. मेरा पास है कितना 60. तो 60 अगर 80 में से माइनस कर देंगे, आप देखो यहाँ पे टिपिकल पॉइंट. मेरा पास कैपिटल ड्यू हो रहा है 40, बट मेरा पास है 80 रुपीज. 80 रुपीज का वैल्यूएशन क्या है? 40 रुपीज माय कैपिटल एंड 20 रुपीज माय प्रीमियम. तो मैंने पहले ऑलवेज बोला फर्स्ट टू एडजस्ट द कैपिटल मनी एंड देन इफ एनीथिंग रेस्ट इन माय हैंड विल बी एडजस्ट फॉर द प्रीमियम मनी. इस वर्ड को दिमाग में एकदम फिक्स कर दो. तो 80 रुपीज ड्यू है, 60 रुपीज मेरा पास है एक्सेस. तो मैं 80 में से 40 माय कैपिटल, 40 को 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 60 में से 40 चला गया,
20 is my hand. अब मेरा प्रीमियम कितना ड्यू हो रहा है 40 रुपीज, बट वी हैव नो 40 रुपीज, हमारे पास कितने अवेलेबल है 20, और 20 को माइनस करेंगे, नॉट पेड इज 20 एंड दैट नॉट पेड मनी इज माय प्रीमियम मनी। तो यहीं पे मैंने इसमें नॉट पेड को प्रीमियम लिखा। तो ये प्रीमियम, जो प्रीमियम नहीं आता है उस प्रीमियम को रिवर्स करेंगे। तो जब हम निखिल का शेयर को फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट की एंट्री में इसकी प्रीमियम की 20 रुपीज रिवर्स होगा ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा तो 40 into 1 another rupees, that means 40 rupees another premium will be not received, and therefore the total 40 plus 20 60 rupees refund हो जाएगा। वेरी सिंसियरली इसको फॉलो करो, इट्स वेरी गुड सम, वेरी इंटरेस्टिंग सम, इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, अर्जुन। अर्जुन में क्या बोला है, अर्जुन हु अलॉटेड, नाउ निखिल पे था अप्लाइड, अर्जुन ने बोल रहा है अलॉटेड, हमने दे दिया, तो मांगा था कितना, ज्यादा निकालने पड़ेंगे। अब मैंने निकाला वहां पे अप्लाइड इज टू अलॉटेड, तो अप्लाइड कितना, हाँ कितना था, मेरा रेशियो कितना बोल रहा था 3 अप्लाइड 2 अलॉटेड, 3 मांग रहा है तो हम 2 दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे 2 अलॉटेड, क्योंकि मेरे पास अलॉटेड फिगर है, अप्लाइड फिगर को निकालने पड़ेंगे, तो जिस फिगर को निकालने पड़ेंगे उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, दैट इज 2 allotted, 3 applied, 1 is equal to 3 by 2 into how much allotted 100 multiply करके adjust करके 150 applied। तो अर्जुन is asking for 150 shares, but how much allotted, only 100। तो asking किया मतलब वो मांगा ज्यादा, तो इसका मतलब पैसा जमा किया ज्यादा। अब उसको कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे कि वहां पे कितना उसकी नॉट पेड आ रहा है। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन, 150 रुपीज 150 शेयर्स इनटू 2 plus 1 एप्लीकेशन जमा किया 300 प्लस 150, हमने उसमें से कितना काटेंगे 100 शेयर्स अप्लाई, 100 शेयर्स हमने अलॉटमेंट किया तो 200, 200 minus 100, that means it is excess in my hand is 150 rupees, bifurcation is 100 from the capital and 50 from the premium money। now allotment, अलॉटमेंट में 100 शेयर्स के ऊपर हम ड्यू एंट्री डालेंगे, ड्यू एंट्री इज व्हाट 1 plus 1 is my allotment installment, तो 100 कैपिटल अकाउंट ड्यू एंड 100 प्रीमियम अकाउंट ड्यू। मेरा 100 कैपिटल में का एक्सेस पड़ा हुआ है, बट प्रीमियम में 50 रुपीस पड़ा हुआ है, हमने उस 50 को एडजस्ट करेंगे, बाकी जो 50 नहीं आ रहा है दैट इज माय प्रीमियम नॉट पेड। तो प्रीमियम जो नहीं आया अर्जुन का ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट ई भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं से भी हम लोग एडजस्ट कर सकेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे 150 एक्स्ट्रा हो रहा है, मेरा कैपिटल चाहिए 100, तो 50 रुपीज ऑटोमेटिकली ये जाएगा, एंड अर्जुन का शेयर फॉरफिट होगा आफ्टर फाइनल कॉल। ये दिमाग में रखोगे ऑलवेज कि जब अर्जुन का शेयर फाइनल कॉल में जाके रिवर्स करेंगे तब मेरा प्रीमियम में अलॉटमेंट में 50 रुपीज उसने नहीं दिया था वो रिवर्स होगा, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 100 into 1 100 रुपीज वो भी रिवर्स होगा, फाइनल कॉल दिया नहीं है 100 शेयर्स अलॉटेड into 1, तो 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 250 रुपीज प्रीमियम में रिवर्स हो जाएगा। वेरी इजी, कंसेप्ट को क्लियर करो, नहीं समझ में आ रहा है बार बार मेरा इस वीडियो को देखो सुनो, नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है गिव मी अ कॉल, आई विल टीच। नाउ प्रोसीड टू द जर्नल एंट्री। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री 15,000 की बैंक एंट्री लेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच 15,000 इनटू व्हाट अमाउंट, प्रीमियम में आएगा, प्रीमियम तो बैंक एंट्री में ले लेंगे, जब हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हम प्रीमियम एंट्री लेंगे, दैट इज यू नो। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा 2 plus 1 3 into 15, that means 45,000। ट्रांसफर एंट्री, सेकंड एंट्री शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दिस इज अ वेरी डेफिनेटली वेरी हॉट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली देता नहीं है सीबीएसई, बट स्टिल यू हैव टू नो कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो दैट इज व्हाई मैंने इसको दिया। इसके बाद मैं क्वेश्चन खाली डालते रहूंगा,
and you will have to submit your solution regular basis. तो 45,000. अब इसमें मेरा पास 5,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा मनी भी है, वो हम कहाँ पे ले जाएंगे? शेयर्स अलॉटमेंट में, क्योंकि रिफंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला. जब तक रिफंड के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, वी विल नॉट डू द रिफंड और रिजेक्टेड. उस पैसे को हम ऑलवेज नेक्स्ट कॉल इज अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे वेरी सिंसियरली, एंड दिस इज हार्ड एंड फर्स्ट रूल. इसके ऑप्शन कुछ भी नहीं है. तो कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 शेयर इनटू 2, 20,000. बड़े ध्यान से करोगे इसको, देखोगे कैसे टैली हो जाता है डेबिट और क्रेडिट. प्रीमियम में कितना जाएगा? 10,000 इनटू 1, दैट इज माय 10,000. अब देखो 5 इनटू 3, तो 5 रुपया इनटू 2 प्लस 1 3, 15,000 मैं ट्रांसफर कर दूंगा अलॉटमेंट में. देखो मेरा टैली हो गया. 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45. This is very important. It should be tallied, debit and credit. The second, third journal entry, allotment due. धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो, समझ के करो. एक समझ जाओगे तो देखोगे अगले 5 साल तुम्हारे लिए इजी बन जाता है. Allotment due. What is journal entry? Share allotment. Share allotment. Account debit to share capital. प्रीमियम है to security premium reserve. Share allotment account debit to share capital account to security premium reserve. How it is bifurcation? 1 plus 1. Number of share is 10,000. ध्यान रखना, not 15,000. That is my receiving. Adjustment हो गया. तो 10,000 into 2 total amount 20,000. Allotment में capital में 10,000. 10,000 into 1 and again premium में 10,000. Total to how much? 20,000. हमने कितना ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है? 5,000 into 3 15,000 ट्रांसफर कर रखा है. तो 20,000 ड्यू में से 15,000 मैंने ट्रांसफर कर रखा है, उसको माइनस करेंगे, बचेगा 5,000 रुपीज. उनमें से अलॉटमेंट में नॉट पेड एंड अर्जुन का और निखिल का नॉट पेड माइनस हो जाएगा. एंट्री दे रहा हूं, चेक करो. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू share allotment account credit. What is the total due? यहाँ पे नीचे लिखोगे 20,000. हमने ट्रांसफर कितना किया था याद करके देखो. जर्नल एंट्री चेक करो. सेकंड जर्नल एंट्री में हमने 15,000 की ट्रांसफर किया था, तो 15,000 माइनस करेंगे, दैट बिकम 5,000 रुपीज एक्चुअल ड्यू. अब उनमें से नॉट पेड मैं निकाल दूंगा. नॉट पेड मैं जब निकालूंगा तो उसमें से क्या क्या निकलेगा? एक तो ये 20 रुपीज माइनस हो जाएगा एंड अलॉटमेंट में एक 50 भी तो माइनस होगा, तो -20. तो बैंक में क्योंकि उसकी तो अलॉटमेंट आ ही गया था, प्रीमियम नहीं आया था, वो हम बाद में देखेंगे. क्योंकि अर्जुन ने देखो, अर्जुन ने क्या दिया था? अर्जुन अलॉटेड 100 इक्विटी शेयर, फेल टू पे द 2 कॉल. अलॉटमेंट उसका पूरा आ गया था, तो हम पूरा उसको एडजस्टमेंट करेंगे, खाली 20 रुपीज को माइनस करेंगे. दैट मींस 4980 will be arrived in the bank account on account of allotment. Hope it is clear. Any problem? Put me a question. Clear? अब यहाँ पे क्या करेंगे? अलॉटमेंट का बाद किसकी शेयर फॉरफिट करेंगे? निखिल का शेयर नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होगा, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं. फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितने ऊपर ड्यू करेंगे? 10,000 शेयर. फर्स्ट कॉल 3 + 1
तो 40,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 प्लस 1 4 इंटू 10 40,000 3 रुपया कैपिटल में 30,000 एंड 1 रुपीस प्रीमियम 1 रुपीस इंटू 10,000 इज कॉल्ड प्रीमियम मनी ड्यू हो गया। अब मेरा बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखना अर्जुन का भी फर्स्ट कॉल नहीं आएगा एंड निखिल का भी नहीं आएगा एंड देन निखिल का शेयर विल बी पार्टेड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल टोटल इज ड्यू 40,000। मैं यहाँ पे बाइफिकेशन दे रहा हूँ, कैसे एडजस्ट करोगे। अर्जुन का कितना शेयर एलोकेट था 100 शेयर्स, तो अर्जुन का 100 शेयर्स में कितना करके 3 प्लस 1 प्रीमियम भी नहीं आएगा, दैट मींस 400 रुपीस नहीं आएगा फर्स्ट कॉल की, तो 400 माइनस होगा दैट मींस 39,600 मैंने इसका ले लिया। अब इसने हमने अप्लाई किया था 60 शेयर, हमने दिया था 40 शेयर, तो 40 इंटू 3 प्लस 1 4 4 इज 60 160 रुपीस इसके भी माइनस करेंगे तो 0 4 कैरी 1 4 39,440 रुपीस 39,440 बैंक अकाउंट 39,440 रुपीस विल बी इन द बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ देख लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को। अर्जुन का 100 शेयर्स एलोकेट था, फर्स्ट कॉल में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 100 इंटू 4 400 माइनस किया 40,000 में से। निखिल का 60 मांगा था, हमने दिया 40 शेयर्स, 40 इंटू 4 160 रुपीस माइनस किया, दैट बिकेम 39,440। वेरी सिंसियरली इसको करोगे, रिपीट कर दो जितना मेरा फिगर आ रहा है, जितना मेरा ऑडियो को सुनो, सुन के इसको पढ़ो। तो दिस इज माय what bank entry on first call. Now the part of forfeit entry, because question is there कि निखिल ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड हिज शेयर्स फॉरफिटेड। अब ध्यान रखना निखिल का फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं आया एंड अलॉटमेंट का भी प्रीमियम 20 रुपया नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल में 40 इंटू 1 40 रुपीस एंड 20 रुपीस 60 रुपीस प्रीमियम रिवर्स होगा। अब मैं फॉरफिट की एंट्री दे रहा हूँ, टेक केयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अलॉटमेंट में कुछ पैसा नहीं आया था, अलॉटमेंट तो लेने पड़ेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में भी नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, ओनली निखिल, हाउ मच, दैट इज 40 नॉट 60, ध्यान रखना 60 वाज अप्लाइड एंड 40 इज allotted के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। कहां तक कॉल किया, फर्स्ट कॉल तक 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 रुपीस तक कॉल हो गया मेरा, तो 6 का कॉल हुआ कैपिटल में एंड 3 का कॉल हुआ प्रीमियम में। अलॉटमेंट में प्रीमियम 20 रुपए नहीं आया, फर्स्ट कॉल में पूरा नहीं आया 40 शेयर के ऊपर, 40 प्लस 1 60 रुपीस का रिवर्स एंट्री डाल दो पहले, समझ में आ गया। 20 रुपीस तो नॉट पेड था अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट कॉल में इसका 40 शेयर था, 40 इंटू 1 रुपीस फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था, तो 40 इंटू 1 40 रुपीस प्रीमियम भी नहीं आया, तो 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 रुपीस मैंने रिवर्स कर दिया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हो रहा है 60 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हो रहा है 60 शेयर्स। कहां तक कॉल किया हमने, 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 मतलब इंटू 6 360 शेयर फॉरफिट में कितना लेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, निखिल ने कितना दिया था 180 रुपीस दिया था, उनमें से मैंने 40 रुपीस प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट किया, 20 रुपीस प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट किया, मतलब 60 रुपीस मैंने प्रीमियम एडजस्ट कर दिया 180 रुपया में से। तो मेरा कैपिटल में कितना एडजस्ट हुआ 180 रुपीस माइनस 60 इज इक्वल टू 120, दैट इज माय फॉरफिटेड शेयर्स।
प्रॉफिट अलॉटमेंट में नॉट पेड 20 जो मेरा प्रीमियम नहीं आया था, एंड फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 3 और 1 4, 4 इंटू 4 160 आ रहा है, 6 7 8 9 10 समथिंग रॉन्ग। फॉरफिट में क्या हुआ, हमने फॉरफिट लिया था 180 में से हमने 40 यहाँ पे एडजस्ट किया तो 140, यहाँ पे 20 एडजस्ट किया 120 मैंने दिया। शेयर अलॉटमेंट में नॉट पेड इज 20 रुपीज। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना गड़बड़ हो रहा है, 40 इंटू 3 और 1 4, 4 4 16, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में कितना लिया, यहाँ पे मेरा रिवर्स हो रहा है प्रीमियम 20 प्लस 40 60, ओके इट इज फाइन। तो शेयर फॉरफिट में कितना जा रहा है, शेयर फॉरफिट में जाएगा 40 इंटू 6, मैंने 40 इंटू 60 क्यों लिया, 60 नहीं होगा ना, 40 शेयर्स हमने अलॉटमेंट 40 इंटू 6 240। देखो यही है प्रॉब्लम। तो अप्लाइड से हम एडजस्ट करेंगे, नॉट सॉरी एलोटेड से करेंगे, नॉट अप्लाइड। अप्लाइड क्या था 7, वही मेरे दिमाग में था, मैंने 7 लिख दिया था। इट शुड बी एलोटेड 40 इंटू 6 240 प्लस 60 कितना हो गया, 6 2 12 कैरी ओवर 1 320, तो 160 प्लस 140 320 0 6 300 only 300, this is 300 and this is also 300, तो क्लियर। तो दिस इज द फॉरफिट एंट्री। यहीं पे गड़बड़ होता है, अगर तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी मत करो, धीरे धीरे समझ के करो। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड हाउ द 60 रुपीस इज कम। 20 रुपीस अलग में नॉट पेड था, फर्स्ट कॉल में 1 रुपीस करके 40 शेयर का पैसा 40 इंटू 1, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। मेरा प्रीमियम रिवर्स हुआ, 40 शेयर्स के ऊपर मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, 6 रुपया कॉल हुआ, 4 6 24 240 रुपीस। शेयर फॉरफिट में 120 कहां से आया, 180 मेरे पास आ गया था। हमने कैपिटल में 80 रुपीस एंड अनदर एप्लीकेशन में 80 एंड अलॉटमेंट में 40 120 हमने उसमें एडजस्ट किया, 120 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ। दिस इज माय प्रॉफिट। अलॉटमेंट में कितना नहीं आया था, 20 रुपीस, दैट इज माय प्रीमियम मनी। एंड फर्स्ट कॉल में 4 रुपए करके 40 शेयर्स 160 रुपीस नहीं आया, दैट इज माय फर्स्ट कॉल। दिस इज द फॉरफिट एंट्री ऑफ निखिल। नाउ अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल में फॉरफिट कर दिया, कितना शेयर कम हो गया मेरे से, 40 शेयर कम हो गया आउट ऑफ 10,000 शेयर। तो फाइनल कॉल ड्यू कितना करेंगे, तो 10,000 में से यहां पे भी चेकआउट पॉइंट रखोगे जरूर, तो 9960 के ऊपर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू होगा, क्योंकि अगर बीच में फॉरफिट हो जाता है तो नेक्स्ट कॉल में उतना फॉरफिटेड शेयर्स माइनस करके हम ड्यू करेंगे। यू नो वेरी मच। Now 9960 shares first and final call account debit to share capital account to security premium reserve, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम है। Now how much shares, 9960 into 3 कितना होगा, 9960 into 4, तो 9960 उल्टा करो उसको, 10,000 में से 4 दैट मीन्स 40,000, उनमें से 4 4 16, हमने 40 शेयर ही माइनस किया, तो 160 रुपीस माइनस कर दो, 4 कैरी ओवर 1 2 8 9 3 39,840, 39,840। देखो मैं काटते जा रहा हूं, अगर नहीं होगा तो देखो मेरा टैली नहीं होगा। सॉरी, शेयर कैपिटल में कितना लेंगे, 4 रुपया इंटू, यहाँ पे 5 आना चाहिए था ना, तो 5 रुपीज इंटू, यस देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10,000 शेयर इंटू 5, क्योंकि फाइनल कॉल में कर रहा हूं, फाइनल कॉल में 4 और 1 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 50,000। 50 में से 160 माइनस हुआ, 50 में से 4 रुपए 5 रुपए 5 5 चलिए 20, 200 रुपए माइनस होगा, तो इट इज बिकेम 49,800 रुपीस। डू एंट्री 49,800। कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल
9960 into 4 रुपीज 39,840 कैलकुलेशन कर लोगे एंड इसमें जाएगा 9960 किस लिए निकाला, कैसे निकाला? 10,000 में से हमने जो 40 शेयर्स माइनस कर दिया था उसको इंटू 1। अब इसको टोटल करके एक बार देख लो, 4 अच्छे 10 0 0 कैरी फॉर 1 9 1 10 8 18 कैरी फॉर 1 9 9 18 19 9 कैरी फॉर 1 3 1 4 49,800 वेरी केयरफुल इसको करोगे, ऑलवेज एक चेक पॉइंट रखोगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो दिस इज माय ड्यू एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल। बैंक में एंट्री कितना आएगा? बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, दिस इज नॉट फर्स्ट सेकंड, टू शेयर्स second and final call. To second and final call 9960 इतना नंबर ऑफ शेयर्स। बैंक में कितना पैसा नहीं आएगा? 100 शेयर्स इंटू 4 और 1 5 500 नहीं आएगा। तो हम टोटल मेरा ड्यू हो रहा है 49,800 में से 500 माइनस कर देंगे 394 49,300 रुपीज बैंक में आ जाना चाहिए। देखता है कितना आ रहा है यहाँ पे 49,300। क्लियर? कैसे आया? 100 शेयर्स इंटू दिस इज 5 तो 500 रुपीज इसलिए मैंने माइनस किया, दैट बिकेम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 49,300 रुपीज 49,300 माइनस करके करो, घर पे करो, नहीं करो नहीं होगा क्वेश्चन में बताऊंगा। तो दिस इज द क्लियर फाइनल एंट्री हो गया। नाउ अर्जुन का शेयर मैं फॉरफिट करूंगा। अर्जुन का शेयर अगर मैं फॉरफिट करता हूं तो मेरा कितना शेयर फॉरफिट होगा? 100 शेयर, नॉट 150, क्योंकि 150 वाज अप्लाइड एंड 100 शेयर्स वाज allotted. Now come to the point of the share capital account. Share capital account debit सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिवर्स होगा, क्योंकि अर्जुन ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, था, फाइनल कॉल भी नहीं दिया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम reserve account debit to shares, forfeited account to share, first call account to share, second and final call account। धीरे धीरे करो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हो रहा है 100 इंटू टोटल कॉल हो गया 10 1000। प्रीमियम कितना रिवर्स करेंगे? वेरी सिंसियरली, एक तो यहाँ पे प्रीमियम रिवर्स था मेरा 50 रुपीज जो नहीं आया था, एक 50 रुपीज हो गया। फर्स्ट कॉल में दिया नहीं है 100 1 इंटू 100 हो गया। फाइनल कॉल भी दिया नहीं है 100 इंटू 100, तो मेरे हिसाब से इट शुड बी 250 रुपीज 200 रुपीज मेरा प्रीमियम रिवर्स होना चाहिए। 150 इंटू 2 300 प्लस 150 ओके 300 मेरे पास आया, यहाँ पे था मेरा 450 300 150 से मेरा यहाँ पे 100 अलॉटमेंट इन्होंने बोला पूरा पैसा दे दिया। अर्जुन में पे पढ़ रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ उड़ा 50 रुपया का। तो अर्जुन who was allotted 100 equity shares failed to pay who of the 2 calls and his such failure his equity shares were forfeited। यहाँ पे एक पॉइंट में इन्होंने यही बोला है कि अर्जुन ने अलॉटमेंट तक पूरा पैसा दे दिया। इसका मतलब अलॉटमेंट में पूरा पैसा इनका आ गया, तो इसका मतलब खाली फर्स्ट कॉल की एंड फाइनल कॉल के प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे रिवर्स करेंगे कितना, 1 रुपया प्लस 1 रुपया 100 शेयर 200 रुपीज यहाँ पे रिवर्स होगा। शेयर फॉरफिट में कितना दिया था, 100 शेयर्स का एप्लीकेशन 2 रुपया दे दिया था, 100 शेयर्स का 1 रुपया अलॉटमेंट दे दिया था, तो 3 रुपया दे दिया, 3 इंटू 100 300 रुपीज इन्होंने दे दिया था। 300 रुपीज विच बिकेम ए फॉरफिटेड एंट्री। क्लियर, 2 रुपया एप्लीकेशन का, 1 रुपया 1 रुपीज फॉर द अलॉटमेंट, ये दोनों पैसे उन्होंने फुल दे दिया था। तो 200 into 100 into 2 and 100 into 1 that became 300 rupees is my forfeit entry. फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में उन्होंने सारा पैसा दे दिया, उसलिए हम अलॉटमेंट में लेंगे ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल में कितना ले दिया, 3 + 1 4 into 100 400 रुपीज इन्होंने फर्स्ट कॉल में ले दिया। एंड फाइनल कॉल में 4 और 1 5 5 into 100 500 रुपीज इन्होंने नहीं दिया। 4 पर 9 10 11 12 and 1000 and 200 is equal to 1200 rupees. This is the forfeitures of Arjun shares, 100 allotted 150 applied की फॉर्मेट। नाउ रीइश्यू, अब देखो क्या हो रहा है, 100 तो यहाँ पे था और 40 शेयर यहाँ पे था, तो टोटल फॉरफिट हमने कितना किया, 140 शेयर हमने फॉरफिट किया। इट इज 100 शेयर ऑफ अर्जुन एंड 40 शेयर ऑफ निखिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑफ द इक्विटी शेयर फॉरफिटेड 120 इक्विटी शेयर्स वर रीइश्यूड इंक्लूडिंग द होल ऑफ निखिल के पूरा। तो 140 में से 40 निखिल क्या हो गया, एंड तो टोटल हमने 120 शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, इसमें से 40 शेयर निखिल का, तो कितना हो जाएगा, 80 शेयर हो जाएगा अर्जुन का। तो मेरा प्रॉफिट अभी कितना आया था, 100 शेयर में प्रॉफिट आया था 300, दैट मीन्स 1 में आ रहा है 3 रुपया करके, 3 into 80 लेंगे इज इक्वल टू 240 रुपीज। मैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन करूंगा अर्जुन का इंस्टेड ऑफ 300। नाउ रीइश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में रीइश्यू हो रहा है, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, बैंक अकाउंट डेबिट 120। थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा, तुम लोग को इजी हो जाएगा। तो 120 into 8 बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिस्काउंट में जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। दोबारा बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 120 into 8 आपका 960, 2 रुपए का डिस्काउंट, 120 into 2 240, 9 10 11 12, तो यहाँ पे 120 into 10 is equal to 1200। क्लियर, दिस इज द बैंक एंट्री। नाउ कैपिटल रिजर्व, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, देखो निखिल का पूरा शेयर, निखिल का 40 जो शेयर आया था पूरा शेयर में मेरे पास कितना आया था, 180 में से 40 + 20 60 माइनस कर दिया, तो 120 रुपया मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। और वहां पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी निकाला 3 into 80 240 रुपया, तो टोटल प्रॉफिट इज माय 1240 + 120 is equal to 06 360 में से मेरा 240 रुपीज इज माय लॉस, तो 360 minus 240 is equal to 4 2 6 120 rupees is my capital reserve. Hope it is clear to you. Any problem, revert me please. तो मैं यहाँ पे कैपिटल की एंट्री दूंगा, that means शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया, 120 एंड 120। अब दिमाग में तुम लोगों का घूम रहा है, मैंने 80 क्यों लिया, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज 100 + 40, तो बोल रहा है 40 को पूरा लो, तो 40 को पूरा लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, मेरे पास 120 है तो 80 बचेगा, तो मेरा इसलिए 120 हो रहा है, तो 80 का प्रोपोर्शन मैंने निकाल दिया। 3 रुपया पर शेयर में प्रॉफिट हो रहा था अर्जुन का, 3 into 80 24 240, तो 240 इसका हो गया, और इसमें से 240
240 हो गया इसका प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट हो गया 180 माइनस 40 माइनस 20 60 मतलब 120 120 प्लस 240 इज इक्वल टू 0 360 माय प्रॉफिट माइनस 240 इज माय लॉस इज इक्वल टू 120 इज माय कैपिटल रिजर्व. क्लियर? थैंक यू.